to understand goods and service tax, because nowadays this GST implemented on 1st July 2017, but till date many of the students and many of the businessmen or servicemen doesn't understand what is goods and service tax GST exactly is. So today in this 1 hour lecture we are discussing about GST and how does it calculated. But before understanding GST, you need to understand what is exactly tax. So let's continue. What is tax and why government lay this taxes nowadays? वो taxes क्यों लेते हैं? हमको कभी ऐसा लगता है कि सर इतना सारा tax, why we are paying? You are not paying tax. Actually, you also pay the tax. Every individual in India paying the tax. Now, what is tax? A tax is a compulsory financial charges or some other type of levy imposed on taxpayer by the governmental organization in order to fund government spending and various public expenditure. Now, the most important thing is ये टैक्स लिया क्यों जाता है? पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है. देखो, because what is the main source of income for government? So tax is the only main source of income for the government through which government spend behind us. Government हमारे पीछे जो खर्चा करती है, ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी में ज्यादा बोलूंगा because due to language आपको ऐसा समझ में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. So government spend many amount behind us. Say for example, रोड बनाना, then aviation, then ये research पे खर्च करना, then government employees, how many government employees are there and regularly paying the salary on regular date. So these many expenses. Say for example, for education also, many students got scholarship, 100% scholarship, 50% scholarship, 20% scholarship. तो ये सब पैसा आता कहां से है? That is important again. Subsidy, yes. If you have any question or if you have any query, you can just text. You just send me a message in text box, so I easily read it and I will give you the answer. Clear? So for these expenses, government need money, and the main source of income for government is tax. Clear? So now next, देखो, say for example, for government spend their money behind the roads, military, that our safeguard, then hospitals or government universities हैं इतने सारे, then garden को develop करना, government जो garden होते हैं, then behind the policeman, research के पीछे, दवाइयाँ के पीछे, then bridge बनाना, hospital का खर्चा, then ये सब लाइट्स और लाइट बिल, ये जो रात में लाइट चलती हैं, जो स्ट्रीट लाइट हम बोलते हैं, उसका पैसा कहां से आता है? तो these all are expenses regularly government need to pay, और ये expenses के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, और उसका मेन स्रोत जो है वो है टैक्सेस. टैक्स से उसको पैसा मिलता है. ठीक है, चलो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा स्मॉल, एक बार आप देख लो, देन विल कंटिन्यू. Complex tax system. It's almost impossible for new businesses and startups to understand the direct and indirect tax systems. This problem gets even more aggravated when constant changes are made to taxes with each financial year. But things change with the new goods and services tax, commonly known as GST. Let's take an example. Aditya would like to start a business in Delhi for which he needs raw materials from Beijing in China. While importing, it would first land at a port and then from there it would travel to the manufacturing center at Delhi via road passing through various states.
Now, when Aditya starts analyzing the various taxes he needs to pay in the process of just transporting the material to his center, he will lose his mind. In fact, this happens with many budding entrepreneurs who want to give shape to their dreams but fail to because the complex tax structure in India is the biggest hindrance. First, he needs to pay a customs duty along with the shipping charges. It's fine up till this point, but to comprehend the complexity in the tax structure after this stage would drive anyone crazy. He would have to pay central and state governments 10 different taxes like central excise duties, service tax, VAT, central sales tax, octroi, etc. And not only this, he also would have to pay tax on taxes already collected by the government. To understand this, let's take a very simple example under the present tax system. A seller in Mumbai sells a product to a buyer in Nagpur. On top of the price of the product, VAT is being charged. Now the same product is to be sold from Nagpur to Chennai. The seller in Nagpur increases the price to gain profit. Now on top of the new price including his profit, central sales tax that is CST is added. The price of the product for the buyer in Chennai will comprise of cost of the product plus VAT plus profit plus central sales tax. Don't you see the cascading effect of taxes here? So how does GST affect the taxation system? Okay. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Please mute yourself. Please mute yourself. Okay. Now let's understand. ये जो वीडियो था वो टैक्स सिस्टम पे था. पुराना टैक्स सिस्टम क्या था, ठीक है. अभी उसको हम समझते हैं पहले कि पुराना टैक्स सिस्टम था क्या, ठीक है. बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ टैक्सेस. हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन टैक्सेस? देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस. नंबर वन, डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस. व्हाट इज डायरेक्ट टैक्सेस? Direct taxes means a tax which we paid directly to the government. A tax that we paid directly to the government is called direct tax. This is government. What is indirect tax? A tax we cannot directly pay to the government. A tax we cannot directly pay to the government, that is called indirect tax. आप बोलेंगे सर how does it possible? So let's understand. Now what is direct tax? नीचे एक पिक्चर आपको दिया है, वो आपको समझना है. What is direct tax is? तो direct tax होता क्या है? देखो, an individual directly pay to government. An individual directly pay to government. It is called direct tax. A government directly pay to the government is called direct tax. जैसे कि इनकम टैक्स है ना, वेल्थ टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है. आप बोलेंगे सर कैसे? तो देखो, इनकम किसका होता है? इंडिविजुअल का होता है. इनकम इज ऑफ इंडिविजुअल, मतलब मेरा इनकम है, शायद आप भी इन फ्यूचर में आपका भी इनकम होगा व्हेन यू अर्न सैलरी और आइदर यू डू अ बिजनेस. तो अगर आप बिजनेस करेंगे या आप जॉब करेंगे तो यू विल अर्न एन इनकम. तो वो जो इनकम पे आपको टैक्स भरना होता है वो डायरेक्टली हम किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं. इसीलिए उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है. और ये डायरेक्ट टैक्स किस पे डिपेंड होता है? एबिलिटी टू पे. देखो यहां पे लिखा है एबिलिटी टू पे. एबिलिटी टू पे का मतलब होता है आपका जितना इनकम ज्यादा, यू हैव टू पे मोर टैक्स. अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो आपके सैलरी पे, आपका जो इनकम है, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो उस पे ये गिना जाता है प्रॉफिट पे. अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लियर? तो सपोज मैं जॉब कर रहा हूं इन कॉलेज, अगर मेरा जो सैलरी कट होता है उसमें से जो टैक्स कट होके जाता है, इनकम टैक्स उसको जो बोलते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स है. बिकॉज वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होता है, ठीक है. और ये किस पे डिपेंड होता है? एबिलिटी टू पे.
एबिलिटी टू पे मतलब अगर मेरा इनकम ज्यादा है तो आई हैव टू पे मोर डायरेक्ट टैक्स, अगर मेरा इनकम कम है तो आई हैव टू पे लेस टैक्स, और टैक्स नहीं भी भरना पड़े। ये पता है आपको टैक्सेशन में क्या होता है कि अगर आपका इंडिविजुअल इनकम 2,50,000 से कम है तो यू नीड नॉट टू पे एनी टैक्स। क्लियर? तो इट्स डिपेंड ऑन योर एबिलिटी टू पे। नाउ सेकेंड, डायरेक्ट टैक्स। अभी डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? दैट वी नीड नॉट टू डायरेक्टली पे टू द गवर्नमेंट, हमको डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं भरना है, हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को भरते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आप मूवी देखने के लिए जाते हो, ठीक है, मूवी देखने के लिए जाते हो तो मूवी जब का टिकट आता है तो उसमें 2 टैक्स लगते हैं, अगर आपको पता हो तो, CGST, SGST, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई गुड्स खरीदते हैं, आप मोबाइल फोन खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, अगर आप कार खरीदते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, कार खरीदते हैं, अगर आप होटल का यूज करते हैं, तो यू हैव टू पे टैक्स टू दैट पर्टिकुलर ओनर। सपोज आपने मोबाइल खरीदा तो आप टैक्स जो भरते हो वो किसको भरते हो? डायरेक्टली आप टैक्स भरते हो शॉपकीपर को, मतलब जो शॉप चला रहे, जो ओनर है, आप उसको टैक्स भरते हो, और फिर बाद में वो हमारा टैक्स वो गवर्नमेंट को भरता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है, तो आप टिकट लेते हो तो आपने टैक्स किसको पे किया? तो आपने जो टैक्स पे किया वो आपने जो थिएटर ओनर है आपने उसको टैक्स पे किया, फिर बाद में वो ओनर आपका जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो अभी मुझे ये बताओ कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं या आप किसी और को पे कर रहे हैं, और वो जाके किसको पे करता है? गवर्नमेंट को पे करता है। सपोज यू बाय अ टीवी, तो आप टीवी खरीदते हो, व्हेन यू पे द टैक्स टू द दैट ओनर, जो टीवी आपको बेच रहा है आप उसको टैक्स पे कर रहे हो, और फिर बाद में वो जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। So that's why it's called indirect tax, और indirect tax सबके लिए सेम है, इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए सेम है। आप अगर टीवी लेते हो, अगर कोई गरीब टीवी लेता है या कोई अमीर टीवी लेता है, तो दोनों पे टैक्स सेम लगता है। ऐसा नहीं है कि गरीब है तो टैक्स कम लगेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स दैट वी डायरेक्टली पे टू द गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स दैट वी directly not pay to the government but indirectly through retailer, through some person we are paying the tax. Now next, okay, चलो कुछ डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। विच आर द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, क्विक, बराबर, क्योंकि इसमें हमको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। नाउ इम्पोजिशन, तो इम्पोज ऑन इनकम और प्रॉफिट, डायरेक्ट टैक्स किस पे गिना जाता है? आइदर इंडिविजुअल इनकम और बिजनेस प्रॉफिट पे। देन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इनडायरेक्ट टैक्स किस पे गिना जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ टैक्स पेयर कौन है? इनडायरेक्ट टैक्स पे कौन करता है? तो इंडिविजुअल, मतलब हम आप, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म एंड कंपनीज, तो कंपनीज और वो सब, और आप हम सब डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स पे कौन करता है? एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर जो कोई भी गुड्स और सर्विस कंज्यूम करता है, वो कोई भी हो सकता है, आप में कोई भी, वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। एप्लीकेबिलिटी, तो एप्लीकेबल टू द टैक्स पेयर अलोन, ये किस पे एप्लीकेबल होता है? ओनली टैक्स पेयर। और इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल टू एवरी स्टेज, हर एक स्टेज पे टैक्स लगता है। पता है कैसे? हर एक स्टेज पर, अगर जो होलसेलर है वो कोई टीवी खरीदता है तो होलसेलर को टैक्स देना है, फिर होलसेलर रिटेलर को बेचता है तो रिटेलर को भी टैक्स देना है, रिटेलर हमको गुड सेल करता है तो हमको भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो एवरी स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं, हर एक स्टेज पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एक ही बार पे करता है, वो टैक्स पेयर करता है। नाउ टैक्स बर्डन, तो बता दो टैक्स बर्डन किस पे आता है? डायरेक्टली, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स पेयर इंडिविजुअल पे आता है, टैक्स बर्डन किस पे आता है? इंडिविजुअल पर। बट इन इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स बर्डन शिफ्ट होता है कंज्यूमर पर। अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स भरता कौन है? कंज्यूमर, कोई रिटेलर नहीं भरता है भाई, ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। टैक्स इवासन, इवासन का मतलब है गोलमाल किस में पॉसिबल है? सो इन डायरेक्ट टैक्स गोलमाल इज पॉसिबल। अब बोलेंगे कि सर कैसे? तो आप सुनो, आपके आजू बाजू में बहुत सारी शॉप होंगी, है ना,
छोटी छोटी जो रेडीमेड गारमेंट, मेडिकल है, जिसका ट्रांजेक्शन कैश में होता है, कैश में, जिसका भी ट्रांजेक्शन कैश में होता है, गवर्नमेंट उसको नहीं पकड़ सकते कि भाई उसका कितना इनकम है। तो हमारे मतलब आपके गांव में या आपके सिटी में जो भी शॉप्स हैं, जो रेडीमेड गारमेंट है, जो मेडिकल स्टोर है, उसका बहुत सारा इनकम है, मंथली 5 लाख 10 लाख इनकम है, टोटल रेवेन्यू, और प्रॉफिट गिनोगे तो 3-4 लाख प्रॉफिट होगा, बट इवन दे आर नॉट पेइंग अ डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि सब ट्रांजेक्शन कैश में होता है। कैश में जब ट्रांजेक्शन होता है तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलता है कि उसका कितना इनकम हुआ, इसीलिए वो बच जाते हैं। और जो सैलराइड पीपल है, सैलराइड मतलब जिसका सैलरी बैंक में होता है, वो तो गवर्नमेंट ट्रेस करेंगे ना कि भाई कितना सैलरी हुआ इसका, तो गवर्नमेंट कैन इजीली कट द टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स में गोलमाल पॉसिबल है, इनडायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बिल पे गिना जाता है। ठीक है। एंड लास्ट, कौन से डायरेक्ट टैक्सेस हैं? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, दीज ऑल आर द डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस ध्यान से देखना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी दिख रहा है आपको, जीएसटी। जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ, म्यूट योरसेल्फ। जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। और भी इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं? एक्साइज ड्यूटी, वैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। सो दीज आर दी इनडायरेक्ट टैक्सेस। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। चलो पहले स्ट्रक्चर क्या था, अभी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। कैन एनीबडी टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर देयर? डायरेक्ट टैक्सेस, यस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। पहले ये था, देखो, पहले ये था डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी डायरेक्ट टैक्सेस तो वैसे के वैसे ही हैं, डायरेक्ट टैक्सेस चेंज नहीं हो। डायरेक्ट टैक्सेस में कौन से आते हैं? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी 2 टैक्सेस होते थे, ये पहले का स्ट्रक्चर है, पहले का स्ट्रक्चर। इनडायरेक्ट टैक्सेस में 2 टैक्सेस होते हैं, सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्स। सेंट्रल टैक्स कौन से हैं? एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, सीएसटी सेंट्रल सर्विस टैक्स है। ये सब पहले सेंट्रल टैक्सेस से होते थे। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये पहले का टैक्स स्ट्रक्चर है, अभी का नहीं है। ठीक है। नाउ स्टेट के कौन से टैक्सेस होते थे? पहले तो वैट होता था, एंट्री टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स होता था, लॉटरी टैक्स होता था, एक्सेट्रा, बहुत सारे टैक्सेस होते थे। तो पहले ये सब टैक्सेस होते थे। अभी मैं आपको सिंपल बता दूं, आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। चलो मुझे ये बता दो, अभी ये डायरेक्ट टैक्सेस है कि निकल गए हैं? ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो है कि निकल गए हैं? है सर। अभी डायरेक्ट टैक्सेस को, यस, ओके प्रकाश, ओके, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सो अभी डायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी है, वैसे के वैसे ही है। डायरेक्ट टैक्सेस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जो चेंजेस हुआ है वो कौन से किस में हुआ है? इनडायरेक्ट टैक्स में। और इनडायरेक्ट टैक्स निकल के उसका नाम क्या हो गया? जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स को निकल के हो गया क्या? जीएसटी। ठीक है। तो जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आप बोलेंगे कि सर सब इनडायरेक्ट टैक्स निकल गए? नहीं भाई, जीएसटी 17 टैक्स मिला के एक टैक्स बना है, लेकिन कुछ टैक्स अभी भी ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, डायरेक्ट टैक्स एज इट इज वैसे के वैसे ही है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जीएसटी। अभी इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे क्या आ गया? जीएसटी। लेकिन कुछ अभी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे हैं जो जीएसटी में नहीं है, कुछ बहुत कम है लेकिन। ठीक है। तो जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं थोड़े क्वेश्चन पूछूंगा, यू हैव टू गिव द आंसर, सो प्लीज रिमेंबर। अगेन आई एम रिपीटिंग, डायरेक्ट टैक्स अभी भी है, मतलब हमारा इनकम टैक्स वो सब अभी तो है।
ये जीएसटी किसकी जगह पे आया है? इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे आया है। इतने सारे टैक्सेस थे उस जगह पे आया है, तो जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्स का अभी किसने स्थान ले लिया है? जीएसटी ने। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने रखे हैं, कुछ, वो हम बाद में देखेंगे कौन से हैं। चलो ओल्ड स्ट्रक्चर, ये तो अभी हमने समझा दिया। सेंट्रल में पहले इतने सारे टैक्सेस थे, अभी हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। अभी डायरेक्ट टैक्स आप भूल जाओ, अभी आप डायरेक्ट टैक्स भूल जाओ। जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो पहले सेंट्रल के ये सब टैक्सेस थे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सर्विस सेल्स टैक्स। स्टेट के ये टैक्सेस थे, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, वैट, ये सब पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। ठीक है, तो ये सब निकल गए और अभी इसका स्थान किसने ले लिया? जीएसटी। वो क्या है, कैसे काम करता है, वो हम अभी समझ रहे हैं बाद में। अभी हम क्या समझ रहे हैं, पहले क्या प्रॉब्लम्स थे, पहले ओल्ड टैक्स सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स थे। तो बहुत सारी टैक्सेस थे, बहुत सारे टैक्सेस थे, सो बहुत कंफ्यूजन होता था। चलो फिर, और लिमिटेशन क्या थी, ओल्ड टैक्स सिस्टम की लिमिटेशन क्या थी? तो देखो, बहुत सारे टैक्सेस थे, तो अलग अलग टैक्सेस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग करवाना पड़ता था। एक्साइज के लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, वैट के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, एंटरटेनमेंट टैक्स के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, लग्जरी टैक्स के लिए, सेंट्रल एक्साइज के लिए, सर्विस टैक्स के लिए, ये सब के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। लेकिन अभी जीएसटी में ऐसा नहीं है, जीएसटी में एक ही रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसलिए मल्टीपल रजिस्ट्रेशन का झंझट चला गया। ठीक है, ओके। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, पहले क्या था, डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग टैक्सेस थे। पुरानी सिस्टम में अलग अलग टैक्सेस, तो मैं होलसेलर के पास से खरीदता था तो फिर भी टैक्स भरना है, फिर रिटेलर के पास से खरीदता था तो फिर भी टैक्स भरना है। टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम, उसको कैस्केडिंग सिस्टम बोलते हैं। हर एक एंट्री लेवल पे टैक्स गिना जाता था, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स था। देन हाँ, पहले ये भी था, आपको पता है पहले प्रॉब्लम क्या था गुजरात में? मैं पुराना टैक्स सिस्टम बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। हाँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, हम इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की बात करें। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीएसटी, तो वो अलग है, वो बाद में कभी हम देखेंगे इन फ्यूचर, इफ यू हैव अ टाइम, इफ वी हैव अ टाइम। तो ये जो हम अभी समझ रहे हैं आज, वो जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को सबको मिला के जीएसटी बना है। ठीक है, तो पहले लिमिटेशन क्या था, ध्यान से समझ लेना। पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्सेस थे, ध्यान से समझो। अगर गुजरात में वैट 4% था, तो महाराष्ट्र में टैक्स वैट वैल्यू एडेड टैक्स 12% होता था। तो अलग अलग स्टेट में टैक्सेस अलग थे। से फॉर एग्जांपल, अगर आप सैमसंग का सेम मोबाइल फोन गुजरात में लेते थे तो सस्ता पड़ता था, लेकिन महाराष्ट्र में अलग टैक्सेस ज्यादा थे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में वो मोबाइल फोन महंगा पड़ता था। सेम टू सेम कार, आप सेम ब्रांड की, मैं ये पहले का टैक्स सिस्टम समझा रहा हूं। पहले अगर आप कार लेते थे तो गुजरात में कार सस्ती पड़ती थी, लेकिन महाराष्ट्र में यू हैव टू पे मोर टैक्सेस। अगर मोर टैक्स पे करना है तो महंगी हो जाएगी ना, तो लोग क्या करते पता है, गुजरात से लेके जाते थे। ऐसा एग्जांपल है ये। तो अलग अलग स्टेट में टैक्स भी अलग अलग थे। देखो, से फॉर एग्जांपल मैं कोई फॉरेनर हूं और मुझे इंडिया में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है अलग अलग स्टेट में, तो मुझे गुजरात में भी करना है, मुझे महाराष्ट्र में भी करना है, राजस्थान में भी करना है, हरियाणा में करना है, मुझे सब जगह पे बिजनेस करना है। बट प्रॉब्लम क्या था, लोग पहले इंडिया में क्यों नहीं आते थे, कम आते थे? क्योंकि अलग अलग स्टेट में टैक्स सिस्टम अलग अलग था। महाराष्ट्र में टैक्स सिस्टम अलग, गुजरात में अलग, और सेम टैक्स होता था ना, सेम टैक्स, तो फिर भी रेट अलग अलग होते थे। महाराष्ट्र में वैट 12% था, गुजरात में 4% था। तो इससे होता क्या था, लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि साले समझे किसको। अगर फॉरेनर को इंडिया में बिजनेस करना है तो गुजरात का टैक्स सिस्टम अलग, महाराष्ट्र का अलग, राजस्थान का अलग, तो भाई बिजनेस करे कैसे? सेम ब्रांड की कार महाराष्ट्र में अलग प्राइस से मिलती थी क्योंकि टैक्स ज्यादा था, गुजरात में कम टैक्स था इसलिए कम प्राइस पे मिलती थी। आपको पता है लोग गुजरात में पहले इसलिए ज्यादा आते थे क्योंकि गुजरात सरकार ने टैक्स सिस्टम थोड़ा लो रखा था, लिबरल रखा था, लिबरल। इसी लोग क्या करते थे पता है, ज्यादातर एमएनसीज गुजरात में आके प्लांट क्यों डालती थी? क्योंकि गुजरात में सस्ता पड़ता था।
बाकी राज्य में नहीं जाती थी, और गुजरात में बना के बाद बाकी में सेल करती थी, क्योंकि गुजरात में टैक्स थोड़ा कम था। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम थे। जो स्टेट में टैक्स सिस्टम कम है वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट होता था, बाकी सब जगह पे डेवलपमेंट नहीं होता था। सिंपल है ना यार, टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को तो वो स्टेट का डेवलपमेंट करेगी ना। अगर सब बिजनेस गुजरात में आ गए तो टैक्स सबसे ज्यादा कौन से स्टेट को मिलेगा? गुजरात को मिलेगा। तो महाराष्ट्र को क्या मिलेगा फिर? राजस्थान को क्या मिलेगा? तो राजस्थान महाराष्ट्र को पैसे ही नहीं मिलेंगे टैक्स में, तो डेवलपमेंट कैसे करेगा? तो पहले ये सब प्रॉब्लम था, क्योंकि हर कोई स्टेट अपने तरह से टैक्स चेंज कर सकते थे एज पर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले टैक्स सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम थे। नाउ व्हाट इज जीएसटी? तो पहले जीएसटी का मतलब समझ लेते हैं। व्हाट इज जीएसटी? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान से समझना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स यूज इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जीएसटी लगता किस पे है? तो कोई भी आप गुड्स और सर्विस बाय करते हो, कोई भी गुड्स और सर्विस, गुड्स समझते हो ना, मोबाइल फोन, टीवी, आप कुछ भी लेते हो। सर्विस मतलब क्या? आप बैंकिंग सर्विस यूज करते हैं, रेस्टोरेंट यूज करते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं, एरोप्लेन का सर्विस यूज करते हैं, एयरलाइंस का। तो कोई भी गुड्स और सर्विस इंडिया में से बाय करते हैं, देन यू हैव टू पे टैक्स, अगर आप बाय करते हो तो। और किसको पे करना है? जिसके पास से आप बाय करते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, जीएसटी भरना किसको है? कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज इंडिया में बाय करता हो, दे हैव टू पे टैक्स। किसको? जो गुड्स और सर्विस आपको बेच रहा है उसको आपको पे करना है। फिर वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। वो टैक्स वो किसको पे कर देगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, ये लगता किस पे है? ये लगता किस पे है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन टैक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस, सब जगह पे ये टैक्स लगता है। और ये जीएसटी को बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वन नेशन वन टैक्स। इसको वन नेशन वन टैक्स क्यों बोलते हैं पता है? पहले इतने सारे टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, 17 इनडायरेक्ट, 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के बनाया हुआ है जीएसटी। इसलिए वन नेशन वन टैक्स, बट इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ, डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं है यहां पर। देन अभी इसको समझते हैं गिनते कैसे हैं। चलो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अबाउट जीएसटी। नाउ जीएसटी स्टार्टेड बाय फ्रांस इन 1954। जीएसटी स्टार्टेड बाय फ्रांस इन 1954। इंडिया जो मॉडल एडॉप्ट कर रहा है जीएसटी का वो कनाडा का है। इंडिया जो जीएसटी का मॉडल एडॉप्ट कर रहा है दैट इज ऑफ कनाडा। फर्स्ट जीएसटी प्रपोज किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट जो थी पहले, उसने जीएसटी प्रपोज किया था। लॉन्च किसकी नहीं है, इंप्लीमेंट किसने किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी गवर्नमेंट, ये मोदी गवर्नमेंट है, उन लोगों ने इंप्लीमेंट किया। जीएसटी इंक्लूड 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर आप नहीं पे करते जीएसटी देन यू हैव अ 5 ईयर जेल। और जीएसटी इंप्लीमेंट कब हुआ है? इट वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, अभी ध्यान से समझना, जीएसटी कौन सा जीएसटी लागू होता है। चलो अभी दो तरह से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। कौन सा टैक्स लगेगा अभी हम ये वो समझ रहे हैं कि विच टैक्स इज एप्लीकेबल फॉर अस। अभी दो तरह से जीएसटी में दो पार्ट है। पार्ट नंबर 1 कौन सा है? पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 ये है कि अगर आप इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, इंट्रा यूनिवर्सिटी टेरिटरी ट्रांजैक्शन करते हो। इंट्रा स्टेट, ये इंट्रा स्टेट क्या होता है? और इंट्रा, चलो स्टेट समझा दो मुझे, व्हाट इज, मैं समझा देता हूं, रुक जाओ फिर आवाज होगा। स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होता है? पहले स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होता है? तो स्टेट का मतलब होता है जैसे कि गुजरात हैविंग अ स्टेट गवर्नमेंट, जिसको स्टेट गवर्नमेंट लगता है दैट इज कॉल्ड स्टेट गुजरात। फिर यूनियन टेरिटरी क्या है? दो चीजें देखो, यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी क्या है पता है? तो उसको बोलते हैं यूटी। यूटी मींस जिसमें स्टेट नहीं है, जो स्टेट नहीं है, जो डायरेक्ट जिसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। गुजरात इज अ स्टेट, राजस्थान इज अ स्टेट,
बट दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर इज ए यूनियन टेरिटरी, लद्दाख इज ए यूनियन टेरिटरी। आपको पता है इंडिया में कितने स्टेट हैं? इंडिया में करीबन 28 स्टेट हैं। और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? तो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। समझ में आया? गुजरात, इंडिया में कितने हैं? तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और करीबन 9 क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी अगर हम कोई स्टेट के अंदर में लेन देन करते हैं, ध्यान से समझना कौन सा टैक्स लगता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है रादर देन समझना। अगर इफ यू हैव एनी क्वेरी वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। आपको अगर कुछ क्वेरी है तो अगर हम इंट्रा स्टेट, ये इंट्रा स्टेट क्या है पता है? विद इन गुजरात। अगर हम गुजरात में बाइंग सेलिंग करते हैं, गुजरात में बाइंग सेलिंग करते हैं तो हमको 2 टैक्स लगते हैं। गुजरात में अगर हम बाइंग सेलिंग करते हैं तो 2 टैक्स लगते हैं। नंबर 1 CGST और नंबर 2 दैट इज SGST। SGST अभी यूटी जीएसटी नहीं आएगा, यूटी में आपको बाद में समझाता हूं। अगर आप विद इन गुजरात बाय सेल करते हो तो आपको CGST लगता है और दूसरा कौन सा जीएसटी लगता है? SGST। अभी ये CGST क्या है? ध्यान से, CGST का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और SGST का मतलब होता है स्टेट जीएसटी। अभी ध्यान से समझो, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने अहमदाबाद से कोई चीज बाय की, आई एम फ्रॉम कड़ी, और मैंने अहमदाबाद से कोई चीज मतलब टीवी बाय किया, तो मैंने विद इन गुजरात बाइंग किया, बाइंग सेलिंग क्या हुआ? विद इन गुजरात। तो अगर विद इन स्टेट होता है तो CGST लगता है और SGST लगता है। समझ लो कि टीवी पे टोटल 18% टैक्स है। टीवी पे कितना टैक्सेस लगता है? 18%। ध्यान से समझना, 18% टैक्सेस लगता है, 18%। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने एक टीवी बाय किया फ्रॉम अहमदाबाद और मैं कड़ी से हूं, तो मैंने गुजरात में ही बाइंग सेलिंग हुआ। तो अगर गुजरात में विद इन स्टेट बाइंग सेलिंग होता है तो 2 टैक्स लगता है, CGST SGST। मान लो कि टोटल, भाई टोटल टैक्स 18% है, 18%, तो इसके 2 पार्ट होंगे, CGST और दूसरा कौन से जाएगा? SGST। दोनों 9% हो गए। कितने कितने परसेंट हो गए? 9% CGST लगेगा और 9% SGST लगेगा। मतलब सुनो, मैं समझाता हूं। मैंने 100 रुपीज का कोई टीवी बाय किया, ध्यान से समझना, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने 100 रुपीज का कोई टीवी बाय किया अहमदाबाद से और मुझे 18% जीएसटी लगेगा, 18%। तो कितना जीएसटी हुआ? 18%। 100 रुपीज का टीवी है से फॉर एग्जांपल, और 18% जीएसटी है, तो टोटल 18% जीएसटी मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 18 रुपीज। तो वो 18 रुपीज के 2 पार्ट होते हैं। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी जाता है, ध्यान से समझना, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाता है 9 रुपीज, और 9% स्टेट गवर्नमेंट लेके जाता है। मतलब 2 टाइप के जीएसटी लगते हैं, CGST एंड SGST। फिर से समझाता हूं अगर आपको क्वेरी है तो। अगर मैं विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट बोलते हैं उसको, इंट्रा स्टेट, अगर मैं विद इन स्टेट बाय सेल करता हूं तो मुझे 2 टाइप के टैक्स भरने पड़ते हैं। एक टैक्स का नाम है CGST और दूसरा टैक्स कौन सा मुझे भरना पड़ता है? SGST भरना पड़ता है, और ये दोनों इक्वल ही हैं। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, हमने 1000 रुपीज का कोई मोबाइल खरीदा, से फॉर एग्जांपल मैं अहमदाबाद से हूं, मैंने बड़ौदा से खरीदा, बड़ौदा से, तो विद इन गुजरात हुआ। तो बोलो, अगर मैंने विद इन गुजरात वो बाइंग सेलिंग किया, 1000 रुपीज का मोबाइल फोन है, तो 18% जीएसटी लगेगा, 18%। तो 1000 का 18% कितना होगा? टोटल 180 रुपीज। ओके, 180 रुपीज, तो 18% होगा 180 रुपीज, 180 रुपीज। अभी इसमें से 9%, मतलब आधा, आधा कौन लेके जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और आधा 9%, ये टोटल 18% है ना, 18% है, ये कितने परसेंट है? 18%। तो उसमें से 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाएगा, मतलब 90 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगा और 90 रुपीज हमारे रूपानी सरकार को मिलेगा।
स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं अगर आप विद इन स्टेट ट्रांसफर करते हो तो 2 टैक्स लगते हैं, CGST, SGST। अभी मान लो कि आप दिल्ली में रहते हो, गुजरात में नहीं रहते हो। दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हैंडल करता है, इसीलिए उसको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। अभी आप मान लो कि हम दिल्ली में रहते हैं, हम सब दिल्ली में रहते हैं। चलो मैंने दिल्ली में ही बाइंग सेलिंग किया। चलो मैंने दिल्ली में से कोई मोबाइल फोन खरीदा 1000 रुपीज का, सेम एग्जांपल, 1000 रुपीज का मैंने कोई मोबाइल फोन खरीदा। तो मुझे बताओ कि विद इन, इसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, हमने यूनियन टेरिटरी में बाइंग सेलिंग किया। तो बोलो टीवी पे मुझे कितना परसेंट जीएसटी, सॉरी मोबाइल फोन के कितना परसेंट जीएसटी मुझे लगेगा? 18% जीएसटी लगेगा। बोलो। तो अभी ध्यान से समझना कि हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में रहते हैं तो हम यूनियन टेरिटरी हैं, समझ लो हम यूनियन टेरिटरी हैं। हमने दिल्ली में से ही कोई मोबाइल फोन खरीदा 1000 रुपीज का, तो 18% जीएसटी लगेगा। बोलो ये 18% जीएसटी में से 9% कौन लेके जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट 9% लेके जाएगा, और बाकी जो 9% है ना, मतलब CGST लगता है और दूसरा UT GST लगता है। मतलब भाई UT क्यों है? वो यूनियन टेरिटरी है। देखो अगर आप विद इन गुजरात बाइंग सेलिंग करते हो, ये दोनों सेम ही है, SGST और UT GST दोनों सेम ही है, सिर्फ नाम अलग है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। क्योंकि वो क्या है? यूनियन टेरिटरी है। समझ में आया? चलो एक एग्जांपल लेके मुझे समझा दो फटाफट, वी हैव लिमिटेड टाइम। अगर हम गुजरात में रहते हैं, हम सब लोग गुजरात में रहते हैं, अगर गुजरात में बाइंग सेलिंग करते हैं तो कौन से 2 टैक्स लगते हैं? CGST, आधा CGST और आधा क्या लगेगा? SGST। ठीक है, CGST एंड SGST। अगर हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही बाइंग सेलिंग किया, तो हमको कौन सा GST लगता है? प्रकाश, योर वॉइस, प्रकाश एक मिनट प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैं समझा देता हूं, आपका आवाज बहुत आता है। फिर से फटाफट एक बार देख लेते हैं। अगर हम गुजरात में ही बाइंग सेलिंग करते हैं, गुजरात में ही रहते हैं, गुजरात में ही बाइंग सेलिंग करते हैं, तो आपको CGST लगेगा और SGST लगेगा। लेकिन अगर आप यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, UT, जैसे कि दिल्ली में, UT GST नहीं, सिर्फ UT GST नहीं लगेगा, CGST तो लगेगा ना। CGST तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो SGST लगता था उसकी जगह पे उसका नाम उन लोगों ने क्या कर दिया? UT GST कर दिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई होप आई एम क्लियर। मैं फिर से बता देता हूं, सुन लो। अगर हम गुजरात में रहते हैं और विद इन गुजरात बाइंग सेलिंग करते हैं, तो हमको 2 टैक्स भरने हैं, CGST भरना है, SGST भरना है, आधा आधा होता है। अगर हम दिल्ली में रहते हैं यूनियन टेरिटरी में और उसमें हम बाइंग सेलिंग करते हैं, तो फिर भी 2 टैक्स भरने हैं, CGST तो भरना ही है, प्लस SGST की जगह पे कौन सा भरना है? UT GST आपको भरना है। समझ में आ गया? सेंट्रल टैक्स तो भरना ही है, सेंट्रल टैक्स तो आपको भरना ही है, वो तो हर हाल में भरना है। CGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। आप इंडिया में कहीं पे भी जाओ, CGST तो कंपलसरी आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो यहां तक अगर क्लियर है तो आगे जाते हैं। अगर हम गुजरात के बाहर ट्रांजेक्शन करते हैं, आउटसाइड गुजरात, ये तो गुजरात के अंदर की बात हो गई, आउटसाइड गुजरात के बाहर अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमको लगता है IGST। गुजरात के बाहर ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या लगता है? IGST। और ये IGST डायरेक्ट कौन लेके जाता है पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लेके जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर से समझा दूं, चलो मैं गुजरात में रहता हूं, मैंने राजस्थान से कोई चीज बाय की, मैं गुजरात में रहता हूं, मैंने राजस्थान से कोई चीज बाय की, आउट ऑफ स्टेट जाके बाय करते हैं, तो कौन सा GST लगता है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, IGST। यस, IGST लगता है। क्लियर? हाँ। और एक चीज है, IGST क्या है पता है? ये कंबाइंड है, इंटीग्रेटेड GST, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड GST। अभी ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, 18%, ध्यान से समझना IGST एक्चुअली क्या है। लोगों को यही समझ में नहीं आता है। देखो मैंने राजस्थान से कोई मोबाइल बाय किया 1000 रुपीज का,
चलो 100 रुपीज ले लो ना, तो इजी कैलकुलेशन रहेगा। मैंने राजस्थान से कोई जीएसटी, कोई मोबाइल फोन बाय किया 100 रुपीज का, मैं गुजरात में हूं, राजस्थान से बाय किया, चलो तो वो मोबाइल फोन पे इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है पता है? वो सीजीएसटी एचजीएसटी का टोटल है। आईजीएसटी मतलब क्या पता है? वो जो सीजीएसटी एचजीएसटी जो अलग अलग लगता था ना, वो कंबाइन करके आईजीएसटी बनाई दिया उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने कंबाइन। चलो मान लो कि मैंने राजस्थान से 100 रुपीज का मोबाइल खरीदा, 18% टैक्स है, तो कितने रुपीज मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा? कितना रुपीज मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा? 18 रुपीज। ये 18 रुपीज ध्यान से समझना, ये 18 रुपीज डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। किसके पास चले जाएंगे? डायरेक्टली आईजीएसटी डायरेक्टली कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पे लिखा है देखो, आईजीएसटी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी ध्यान से सुनना, अभी चीज बाकी है, अभी चीज बाकी है। चलो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 18 रुपए चले गए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट 18 रुपए रखेंगे नहीं, 18 रुपीज वो नहीं रखेंगे, उसमें से आधा पैसा वो स्टेट को देंगे जिन स्टेट में बाइंग हुआ है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 100 रुपीज का मैंने मोबाइल फोन राजस्थान से खरीदा, गुजरात, हम गुजरात में हैं, गुजरात वाले ने खरीदा, तो 18 रुपीज 18% जीएसटी है, मतलब 100 रुपीज का 18% मतलब 80 रुपीज। 80 रुपीज डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाएगा, बट 18 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रखेंगे, वो उसमें से आधा वो स्टेट को देंगी जिस स्टेट में बाइंग हुआ है। चलो कौन से स्टेट में बाइंग हुआ है? राजस्थान में बाय हुआ या गुजरात में बाय हुआ? गुजरात में। तो गुजरात को 9 रुपीज मिलेगा। राजस्थान को सेल करता है भाई, बाय कौन से स्टेट में हुआ? गुजरात में, तो गुजरात को 9 रुपए मिलेंगे। समझ में आया? तो आईजीएसटी जाता सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसका आधा पोर्शन, आधा मतलब 99%, वो स्टेट को देता है जो स्टेट में बाइंग हुआ है। चलो फटाफट एक बार रिवीजन कर देते हैं, फटाफट। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मुझे फटाफट आंसर देना। अगर मैं गुजरात में रहता हूं और मैंने गुजरात में ही बाइंग सेलिंग किया, तो मुझे 2 टैक्स लगेंगे। कौन से 2 टैक्स लगेंगे? ओके। अगर मैं दिल्ली में रहता हूं, और मैंने दिल्ली में बाइंग सेलिंग किया, यूटी में रहता हूं और यूटी में बाइंग सेलिंग किया, तो फिर भी 2 टैक्स लगेंगे। कौन से? जीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ठीक है। और चलो अगर मैं गुजरात में रहता हूं लेकिन मैंने राजस्थान से बाय किया, आईजीएसटी, तो आईजीएसटी लगेगा। ओके, आईजीएसटी लगेगा, बट अभी आप मत बोलो, आईजीएसटी लगेगा, बट आईजीएसटी कलेक्ट कौन करता है? डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, बट उसमें से आधा पोर्शन 9% गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा 18% में से, और 9% वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? जो स्टेट में वो बाय हुआ है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं, बहुत सा टाइम हो गया इसमें। एक इंडिया का ये है ना, चलो अभी इसमें समझते हैं कि कैसे क्या होता है। मुझे फटाफट, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? आवाज आ रहा है मेरा? हेलो स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट रही है। अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही है? यस सर। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके कारण मुझे वापस जाना। ओके चलो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। वो आवाज, अभी तो आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? यस आ रही है। चलो ठीक है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। फटाफट देखो अगर मैं गुजरात में रहता हूं, ध्यान से, अगर मैं गुजरात में रहता हूं और मैं गुजरात में, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं गुजरात में ही रहता हूं और गुजरात में ही बाइंग सेलिंग करता हूं, तो मुझे कौन सा जीएसटी लगेगा बोलो तो? ओके, अभी दूसरा देखो, अगर मैं गुजरात में रहता हूं और मैं दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, मैं गुजरात में रहता हूं और दिल्ली में बाइंग सेलिंग होता है, दिल्ली में ही,
गुजरात में से नहीं, गुजरात को भूल जाओ, मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में ही बाइंग सेलिंग करता हूं, तो कौन सा जीएसटी लगेगा? CGST। चलो अभी ये समझा दो मुझे, अगर मैं गुजरात में रहता हूं और मैं उत्तर प्रदेश से बाय करता हूं, उत्तर प्रदेश कोई और स्टेट है, तो एक ही टैक्स लगेगा, कौन सा लगेगा? लेकिन चलो आईजीएसटी कलेक्ट कौन करता है? आईजीएसटी कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसका आधा पोर्शन वो आधा पोर्शन खुद रखेगी, और आधा पोर्शन कौन से स्टेट को? वो गुजरात यहाँ पे बाय। यस, यू कैन म्यूट योरसेल्फ नाउ। अभी आप बोलेंगे कि सर गुजरात को मिला तो उत्तर प्रदेश को क्या? भाई उत्तर प्रदेश में कंपनी है, वहां पे सेल हुआ है, तो वहां पे रोजगार मिला, बाकी सब एम्प्लॉयमेंट मिला, वो सब मिला ना। इसीलिए जो स्टेट में बाय होता है वो स्टेट में ही आईजीएसटी का आधा पोर्शन जाता है। आई होप आई एम क्लियर। अभी हम आगे जाते हैं बिकॉज वी हैव टू मैनी टू कवर। चलो देखो पहले क्या था, बहुत सारे टैक्सेस थे, वो मिला के क्या बना? सीजीएसटी बना। फिर बहुत सारे टैक्सेस थे, उसको मिला के बना एसजीएसटी। फिर बहुत सारे टैक्सेस थे, उसको मिला के बना आईजीएसटी। और ये सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को मिला के बना जीएसटी। ठीक है, देखो अभी फटाफट आपको एग्जाम समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं स्टेट 1 में रहता हूं और स्टेट के अंदर ही बाइंग सेलिंग करता हूं, आई होप ये आपको मेरा कर्सर दिख रहा है। अगर मैं स्टेट 1 में रहता हूं और स्टेट 1 में ही बाइंग सेलिंग करता हूं, तो कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर मैं स्टेट 2 में रहता हूं और अंदर से ही बाइंग सेलिंग, मतलब वही स्टेट में बाइंग सेलिंग करता हूं, तो सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है, अगर मैं कोई और स्टेट के साथ बाइंग सेलिंग, देखो स्टेट 1 स्टेट 2, अगर आप ये दो स्टेट के बीच में बाइंग सेलिंग करते हैं तो आपको कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी आपको इंप्लीकेट होगा। क्लियर? तो विद इन स्टेट अगर आप बाइंग सेलिंग करते हो तो दो टैक्स, सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर आप कोई दूसरे स्टेट के साथ बाइंग सेलिंग करते हो तो ओनली वन आईजीएसटी। बट ये आईजीएसटी कुछ नहीं है, सीजीएसटी एसजीएसटी का टोटल ही है। चलो कौन से टैक्स जीएसटी में नहीं आते? देखो ये सारे टैक्स, सेंट्रल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, अदर कस्टम ड्यूटी लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो अभी भी जीएसटी में नहीं है। चलो स्टेट के टैक्सेस अभी भी जो जीएसटी में नहीं है, रोड का टैक्सेस, जो टोल टैक्स भरते हो ना, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीएसटी नाउ टिल। चलो कौन से गुड्स जीएसटी में, हम जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स और सर्विस टैक्स। कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विस पे जो टैक्स लगता है उसको जीएसटी बोलते हैं। लेकिन ये जो गुड्स हैं इस पे जीएसटी नहीं लगता है। देखो कौन से? तो पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन फ्यूल, एविएशन हवाई जहाज में जो आता है वो, नेचुरल गैस, अल्कोहल मतलब दारू, अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो तो दारू पे टैक्स नहीं लगता है, मतलब सॉरी लगता है ह्यूमन के लिए हो तो, और पावर सेक्टर। तो ये सारे ऐसे सेक्टर हैं और गुड्स है और सर्विसेज हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता है। पता है क्यों? अगर जीएसटी लगाए ना तो पेट्रोल गुजरात में 30 रुपीज में मिलेगा। अगर पेट्रोल पे जीएसटी लगेगा ना तो पेट्रोल गुजरात में 30 रुपीज में मिलेगा। ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करने के लिए तो जीएसटी में नहीं डाल रही है। भाई क्यों ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है? क्योंकि पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा तब जाके वो लोग ये सब खर्चा कर पाएगी ना हमारे पीछे। तो ये सब जीएसटी में नहीं आता है। चलो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अभी लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्स। ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होती है पता है? ध्यान से समझना। वी हैव 10 मिनट्स मैक्सिमम बिकॉज वन अनदर मीटिंग इज देयर ऑन सेम आईडी, दैट्स व्हाई। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? तो पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरर ने कोई गुड्स बनाया, तो मैन्युफैक्चरर जब सेल करता है तो उसको एक्साइज ड्यूटी लगता था। से फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी 12% था, तो उसने 100 रुपीज का गुड बनाया तो उसके 12 रुपीज एक्साइज ड्यूटी लगती थी। 12 रुपीज मतलब 12,
तो वो कितने में सेल करता था? 1112 रुपीज में ये इसको सेल करता था शॉप को, और अभी शॉप वाले को कितने में पड़ा वो? 1112। तो वो उस पे भी उसको वैट पे करना पड़ता था। जितने रुपीस का उसने गुड परचेज किया उस पे उसको वैल्यू एडेड टैक्स, ये पुरानी सिस्टम है। तो उसको वैट था 12.15%। वैट का कितने परसेंट था? 12.15%। तो अभी बोलो 112 का 12.15% मींस 14 रुपीज वैट हुआ। मतलब शॉपकीपर को कितना? वो शॉपकीपर 14% वैट ऐड करेगा और कस्टमर को 126 रुपीज में सेल करेगा। तो अभी मुझे ये बताओ, टैक्स पे किया कि नहीं किया? बोलो, ये 1112 रुपीज में टैक्स 12 रुपीज है कि नहीं है? आपने टैक्स देखो, आपने टैक्स, ये 1112 रुपीज में 12 रुपीज टैक्स है, तो आपने टैक्स पे और वेट टैक्स पे किया, दैट इज 12.5%। मतलब पहले की सिस्टम में हम टैक्स पे करते थे। मतलब मैन्युफैक्चरर ने एक्साइज ड्यूटी 12% दे दी है, वो 12% हमारे में ऐड होके आती थी और वो 12% पे भी हम टैक्स पे करते थे। इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट। लेकिन अभी क्या है? अभी ड्यू टू जीएसटी ये कैस्केडिंग इफेक्ट है। अभी ये समझो, अगर ये आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट दूर हो गया। ध्यान से समझ लो कि सपोज मैन्युफैक्चर ने 150 का कोई गुड्स बनाया है। यहां पे मेरे कर्सर को देखते जाना। मैन्युफैक्चर ने 150 रुपीज का कोई गुड्स बनाया और उसने उसमें 50 रुपए उसका प्रॉफिट ऐड किया 50 रुपए। तो वो 200 में सेल करेगा। यस और नो? 150 का गुड्स बनाया है, 50 रुपए उसने उसका प्रॉफिट ऐड किया, तो वो होलसेलर को, ये होलसेलर है दूसरा, वो होलसेलर को पे करेगा 200 रुपीज में, उसको सेल करेगा। लेकिन 12% टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है राइट हैंड साइड, 12% टैक्स रेट है, ऐसा मान लो सबको 12% पे करना है, 12%। तो 200 में जब वो सेल करने के लिए जाता है तो 12% टैक्स कौन पे करेगा? होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पे करेगा, क्योंकि होलसेलर बाय करेगा ना, होलसेलर बाय करेगा, तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को 12% टैक्स पे करेगा। अभी 12% टैक्स कितना होता है? 200 का 12% होता है 24 रुपीज। ये होलसेलर पे करेगा मैन्युफैक्चरर को, और ये मैन्युफैक्चरर ये 24 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। देखो ये 24 रुपीज ये किसको पे कर देगा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को 24 रुपीज मिल गया। ये जीएसटी का सिस्टम है। चलो अभी मुझे बताओ, होलसेलर ने ये कितने में बाय किया? होलसेलर ने 200 में बाय किया। यस और नो? होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर के पास से कितने में बाय किया? 200। ऑडियो 200 म्यूट रखो प्लीज, ऑडियो म्यूट रखो। होलसेलर ने 200 में बाय किया, उसने फिर से 50 रुपए प्रॉफिट ऐड किया, तो वो रिटेलर को कितने में बेचेगा? 250। लेकिन 250 पे फिर से 12% जीएसटी ऐड करना पड़ेगा, 12%। तो 250 का 12% होता है 30। मतलब ये जो होलसेलर है वो रिटेलर को 250 प्लस 30 मतलब 280 में सेल करेगा, 280। तो बोलो रिटेलर ने कितना टैक्स पे किया? ध्यान से समझना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेलर ने 30 रुपीज टैक्स पे किया होलसेलर को। अभी ध्यान से पढ़ समझो। होलसेलर को 30 टैक्स नहीं पे कर देना है। गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा? होलसेलर ही करेगा ना। अभी तो होलसेलर को 30 रुपीज टैक्स पे नहीं करना है। क्यों पता है? क्योंकि देखो होलसेलर ने ऑलरेडी पहले 24 रुपीज टैक्स पे कर दिया है। ध्यान से समझना, होलसेलर ने पहले ऑलरेडी 24 टैक्स पे कर दिया है और अभी 30 रुपीज टैक्स मिला, तो उसको 30 पे नहीं करना है, माइनस कर देना है। 30 माइनस 24, तो वो गवर्नमेंट को कितने रुपीज टैक्स भरेगा? 6 रुपीज ओनली एज अ जीएसटी। मैं फिर से समझा देता हूं। चलो एक और एग्जांपल लेके मैं इसको बोलते हैं रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट। रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है? टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत लेंदी थोड़ा लेक्चर है। देखो इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? ध्यान से समझना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे बताना कि सही क्या है। चलो मैंने किसी के पास से 100 रुपीज में कोई गुड्स परचेज किया। मैंने
कोई होलसेलर के पास से 100 रुपीज में कोई गुड्स परचेज किया और उस पे मैंने उसको 10% जीएसटी पे किया। चलो 10% जीएसटी मतलब कितना उसको मैंने पे किया होगा, 10 रुपीज। यस सर। चलो मैंने होलसेलर को 10 रुपए जीएसटी मैंने ऑलरेडी पे कर दिया और मैंने गुड्स 100 रुपीज में बाय किया। चलो मैं आपको अभी वो गुड्स 150 में आपको सेल कर रहा हूं, कस्टमर को, आप कस्टमर हो, चलो आपको मैं 150 में सेल कर रहा हूं तो आपको भी 10% जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो बोलो आप मुझे, मैं आपको 150 में सेल कर रहा हूं तो आप मुझे 10% मतलब 150 का 10% आप मुझे कितना जीएसटी, 15 रुपए जीएसटी पे करेंगे आप मुझे 15 रुपए जीएसटी। यस, अभी देखो ध्यान से समझो, मैंने ऑलरेडी पहले 10 रुपए जीएसटी पे कर दिया है, आप मुझे 15 रुपए जीएसटी पे करेंगे, मुझे गवर्नमेंट को 15 नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले 10 रुपए जीएसटी दे दिया है, तो 15 में से मुझे 10 माइनस कर देने हैं, तो बाकी मुझे गवर्नमेंट को 15 में से कितने जीएसटी भरवाना है, सिर्फ 5 रुपीज। इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। ध्यान से समझो, मैंने जो इनपुट जीएसटी 10 रुपए भरा था, मैंने जब बाय किया तब मैंने कितना जीएसटी भरा, 10। जब मैंने सेल किया तब मुझे कितना जीएसटी मिला, 5। तो अभी मुझे 15 रुपीज, सॉरी, तो अभी मुझे गवर्नमेंट को सिर्फ कितना रुपीज भरना है, 5। क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी 10 रुपए जीएसटी भर दिया है, टोटल 15 रुपए हो गए। यस और नो? यस सर। Yes, sir. इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। चलो आगे फटाफट एक दो स्लाइड है, विल कवर इट। एडवांटेज हम ज्यादा नहीं देखते हैं, ठीक है। इट विल बी रिप्लेस ऑल मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इट विल रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स जो पहले गिना जाता था, टैक्स में भी टैक्स भरना पड़ता था, वो भी नहीं होता है। फिर ब्लैक मनी, ऐसा गवर्नमेंट मानती है कि ब्लैक मनी रिड्यूस हो जाएगी, बट अप टू व्हाट एक्सटेंट, क्या कितना हुआ है, वी डोंट नो ब्लैक मनी का। इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू, यस ये सही हुआ कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया है। एंड रिड्यूस द एडमिन वर्क। एडमिन वर्क मतलब वो जो बैकग्राउंड में जो वर्क गवर्नमेंट को करना पड़ता था, कॉर्पोरेट वाले को करना पड़ता था, वो बहुत कम हो गया है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। अभी लास्ट में रजिस्ट्रेशन, किसको जीएसटी भरना होता है, तो 3 लोगों को कंपलसरी जीएसटी भरना है। नंबर 1, जो बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख है उसको जीएसटी मिनिमम 20 लाख से अगर टर्नओवर ज्यादा है देन यू हैव टू पे जीएसटी। सेकेंड, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो और ऑनलाइन में फिर 20 लाख नहीं आएगा। ऑनलाइन बिजनेस अगर आप 10 रुपए का भी करते हो, अगर आप स्विगी में 50 रुपए का भी कोई आइटम मंगवाते हो, जीएसटी लगता है, वहां पे 20 लाख नहीं आएगा। तीसरा, अगर आप इंटर स्टेट करते हो, इंटर स्टेट मतलब राजस्थान गुजरात में इन बिटवीन अगर आप बाइंग सेलिंग करते हो, देन यू हैव टू कंपलसरी पे द जीएसटी, ठीक है। और जीएसटी के कुछ स्लैब है, देखो ये लास्ट स्लाइड है, और भी है बट मैं आपको नहीं कवर कर पाऊंगा आज, ठीक है। सो ये बेसिक है, और भी डिटेल में है बट लेटर ऑन वी विल डिस्कस। देखो ये जीएसटी के स्लैब है, 0% जीएसटी, तो जो बेसिक नेसेसिटी है उस पे 0% जीएसटी है, सॉल्ट है, मिल्क है, फ्रूट है। फिर जैसे जैसे लग्जरी चीज होती जा रही है, जैसे जैसे जो हमारी कम इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि देखो मोबाइल फोन पे 12% है, फिर अगर आप परफ्यूम, कंप्यूटर और ज्यादा लग्जरी चीज तो 18%, इससे भी ज्यादा एसी, टोबैको, इस पे 28% सबसे ज्यादा जीएसटी लगता है। तो गवर्नमेंट भी देखती है जो चीज इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, उस पे कम जीएसटी है, जो कम इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट मतलब बेसिक नेसेसिटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पे ज्यादा जीएसटी पे करना पड़ता है। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द जीएसटी।